مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کی محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو جائے۔ فجر کی نماز کے وقت میں برف کاٹ کے پانی بنا کے وضو کر کے نماز پڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے، مگر ماں باپ بھائی بہن سب سے زیادہ اگر حضور سے محبت ہو تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے، یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرب کے ایک تاجروں کا گروہ افریقی ممالک کے سفر پہ تھا۔ برفیلا علاقہ ہے، پہاڑ سے برف گرتی ہے، سارا علاقہ برف ہو جاتا ہے۔ جیسے کشمیر میں اگر آپ گئے ہوں گے اب یہ بہت سارے پریٹک، بہت سارے ٹورسٹ ابھی دسمبر اور جنوری کے مہینے میں کشمیر کا رخ کرتے ہیں، چونکہ وہاں پوری فضا برفیلی ہو جاتی ہے اور وہاں جو پیدا ہوتے ہیں، ہم تو برف کو چھوئیں تو ہاتھ گل جائے، لیکن جو وہاں پیدا ہوتے ہیں وہ برف سے کھیلتے ہیں، وہاں کے بچے برف کو فٹ بال بنا کے کھیلتے ہیں۔ فزیکل اسٹرکچر ہی کچھ ایسا ان کا ہے جو اس علاقے میں پیدا ہوئے، اس کا ماحول ویسا ہوتا ہے۔ اگر ہماری طرح تیز گرمی وہاں ہو وہ لوگ مر جائیں، مگر بہار میں اسی تیز گرمی میں لوگ ہل چلاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کھیت میں رہتے ہیں، باہر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کدال چلاتے ہیں، کلہاڑی چلاتے ہیں، وہ لوگ اس گرمی کو دیکھیں تو مر جائیں۔ اسی طرح ہم ان کو برف سے کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، اگر ہم کھیلیں تو مر جائیں۔ عرب کا ایک گروہ اسی برفیلے علاقے میں پہنچا، جبکہ اسلام کا قانون ہے کہ نماز پنجگانہ پڑھنا فرض ہے، بہت بڑا فرض۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہمارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے ویجیٹیبلز دیے، فروٹس دیے، دودھ، مچھلی، گوشت، ساری چیزیں ہمارے لیے، اور ہمارا کام ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا۔ جب تک یہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں سکون تھا، چین تھا، 2 روپے کمانے کے بعد بھی بادشاہ تھا، لیکن جب سے عبادت لوگوں نے چھوڑ دیا، کروڑوں کا گھر بنانے کے بعد بھی چہرہ کالا ہے، کروڑوں کی گاڑی خریدنے کے بعد بھی دل جل رہا ہے، ماں باپ بھائی بہن آپس میں گیدڑ کتے کی طرح لڑ رہے ہیں، سماج میں قتل ہے، غارت ہے، اور صاحب جنگ و جدال کا ماحول ہے۔ ایک گاؤں میں 4 خاندان ہیں، چاروں خاندان ایک دوسرے کو ذبح کرنے کو تیار ہے۔ ایک خاندان، ایک گاؤں میں 100 آدمی ہیں، 100 پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تم نے مکان خریدا، مکان بنانے کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا، مسجدیں اجاڑ دی اور اپنے گھر کو تم ٹیلی ویژن سے آباد کر دیے۔ یہ چاہتے ہو کہ زندگی میں چین مل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو اجاڑ کے تمہارے 50 کھرب کے بنگلے میں اللہ سکون نہیں رکھے گا، چونکہ قانون ہے کہ جہاں ذکر الہی ہے وہیں سکون قلب ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو آرام اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے۔ ہم نے سکون صوفے میں تلاش کیا، صوفہ گھر میں آ گیا، سکون لٹ گیا۔ ہم نے سکون مکان میں تلاش کیا، مکان 50 کروڑ کا بن گیا، سکون لٹ گیا۔ ہم نے سکون کار میں تلاش کی، 10 اسکارپیو میرے دروازے پہ کھڑی ہے، مگر سکون ہی لٹ گیا۔ پیسہ بڑھتا جاتا ہے، ٹینشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، آدمی کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے، پیسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے 5 لاکھ تھا، اب 5 کروڑ کی ہوس ہے، اب 5 کروڑ ہے، 5 کروڑ کا کوئی ویلو نہیں ہے، 500 کروڑ کی تمنا بندہ کر رہا ہے۔ تو اب جہاں تمنا زیادہ کی ہوگی کبھی سکون نہیں ہوگا، ہمیشہ بلڈ پریشر ہائی رہے گا، ہمیشہ چہرہ کالا رہے گا۔ وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہے گا، ایک کٹھا زمین قبضہ کر لیں تاکہ اس کی قیمت 50 لاکھ روپے مل جائے، میں مالدار بن جاؤں۔ یہ ارب پتی ہے، پھر بھی وہ لڑکی والوں سے ایک کار مانگتا ہے کہ مجھے دو، تب میں تیری بیٹی سے میں شادی کراؤں گا اپنے بیٹے کی، یعنی بھیک مانگتا ہے۔ جس کے پاس خود کار ہے، خود کار خرید سکتا ہے، مگر اپنے بیٹے کو دے کر بیٹی لینے کے بدلے میں ایک کار کی رشوت لیتا ہے، جو رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے، مگر مالدار بننے کے شوق میں حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھا، حرام سے ہی مگر پیسہ چاہیے، چاہے جہاں سے ہو، شراب بیچ کے ہو، تاڑی پی کے ہو،
ज़िना करके हो, सूद खा के हो, कत्ल करके हो, माँ बाप को ज़बह करके हो, भाई को कत्ल करके हो, जैसे भी हो मुझको माल चाहिए। लोगों ने ये मकसद हयात बना लिया, माल चाहिए, चाहे हराम से हो चाहे हलाल से हो, चाहे नमाज छोड़ के हो, चाहे हज के नाम पे दूसरों का पैसा ठग के हो, चाहे ज़कात व खैरात का पैसा मांग के उसको नाजायज तरीके से मैं खा लूं। माल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए और हमें माल चाहिए, फिक्स डिपॉजिट चाहिए। इसने मुझको अंदर से तनाव और कशीदगी में लाया और मेरा दिमाग हमेशा तनाव में रहता है। सोफे पे बैठता हूँ, दिमाग में माल की फिक्र है। 50 करोड़ के बंगले में रहता हूँ, दिमाग में माल की फिक्र है। कार पे चल रहा हूँ मगर कल गरीब हो जाने का डर है और मजीद मालदार बनने की हवस है। सब परेशान है। एक ही आदमी है डॉक्टर जिसकी यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल मेडिसिन की दुकानें खुल रही है, क्योंकि हर आदमी के पास 1 दर्जन बीमारी है। ये बीमारी आदमी ने खुद से मोल लिया। सादगी में बीमारी नहीं होती, जहाँ पेचीदगी हो वहाँ बीमारी है। जहाँ आदमी एक दूसरे की हमदर्दी हो बीमारी नहीं होती। जहाँ हसद और जलन है, जहाँ सीना जलता है, वही आदमी का सुकून के राख हो जाता है। जो दूसरों की तारीफ करे वहाँ बीमारी नहीं होती है। जहाँ दूसरों की गीबत का माहौल बन जाए, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, आगे वाला मेरा दुश्मन है, बाएं वाला मेरा दुश्मन है, ये चारों तरफ मेरे दुश्मन लगे हुए हैं। उन्होंने जादू टोना करके मुझको परेशान करके रखा है, मैं उसका बदला लेके रहूंगा। जहाँ दुश्मनी होगी वहाँ बीमारी 1 दर्जन पैदा हो जाएगी। जहाँ मसीह दौलत कमाने की हवस होगी वहाँ ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो लोगों ने सुकून तलाश किया, मकान में मकान बन गया, सुकून खत्म। लोगों ने सुकून ढूंढा, कार की खरीदारी में कार आ गई, सुकून खत्म हो गया। लोगों ने अच्छा खाने पीने में चैन ढूंढा, आज घर में 10-10, 100-100 बोरे बासमती चावल मौजूद है। पहले तो 1 केजी चावल खरीद के लाता था तो हफ्ते में 1 दिन चावल खाता था, 50 साल पहले। और आज गरीब के घर में 10, 20, 50 बैग बासमती चावल के पड़े हुए हैं। और पहले तो चावल में पत्थर मिला रहता था, लेकिन आज पॉलिश वाले चावल में 1 कंकर पत्थर नहीं मिलता है। आराम से लंबा लंबा चावल, लोग गरीब के घर में भी लंबा 200 रुपए केजी वाला चावल मौजूद रहता है। उसे तो मस्त रहना चाहिए, लेकिन नहीं, दिमाग में जलन है, तपिश है, आग है, ब्लड प्रेशर हाई है। चूंकि उन्होंने चावल में सुकून तलाश किया, वहां सुकून है ही नहीं। न वेजिटेबल में सुकून है, न गोश्त में, न मछली में, न दूध में। वरना दूध खाने वाला वह मस्त रहता, मकान बनाने वाला वह मस्त रहता। और फिर लोगों ने तलाश किया सुकून टेलीविजन में। जैसे भी हो टेलीविजन खरीदना है, और पहले टेलीविजन चलता था और आज वो LED टीवी है, यानी 50,000 रुपए में खरीदना पड़े, मैं उस टीवी को खरीदूंगा ताकि मैच होगा अमेरिका में, ऐसा लगेगा जैसे मैच मेरे घर में हो रहा है। वो LED टीवी खरीदना है ताकि जिंदगी का मजा ले लो, जिंदगी में इंजॉय करो, खाओ पियो मर जाओ, क्या है जिंदगी में। तो ठीक है, इंजॉय करने के लिए तुमने LED टीवी खरीद ली, अब तो बता इंजॉय हो गया, जिंदगी का मजा मिल गया, तो अब फिर बेशुमार अफकार जिंदगी में क्यों है, जिंदगी में आग क्यों लगी है, औलाद बेवफा क्यों हो रही है, माँ बाप औलाद का रिश्ता कमजोर क्यों हो रहा है, लोग जहर खा के क्यों मर रहे हैं। तुमने LED टीवी में सिनेमा देखा, और जो सिनेमा बनाता था सुशांत सिंह राजपूत, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। तुमने LED टीवी में औरतों के नाच को देख करके इंजॉय करना चाहता है, और जो उसमें नाचती थी वो फांसी के फंदे पे लटक गई। 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश पुलिस वालों ने उसके घर से निकाला। तुमने उसका गाना सुना, जिसकी कॉमेडी तुमने सुनी, वो राजू श्रीवास्तव जिसकी कॉमेडी तुम सुन करके दिल बहलाना चाहते थे, लेकिन वह जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया और वेंटिलेशन पे लटका हुआ। कई दिन के बाद वो जिंदगी की जंग से वो हार चुका, वो खुद ही जिंदगी से हार गया और खुद ही एक दर्जन बीमारी की आमाजगा उसका बदन बन गया। वह जिम में जाता था फिट रहने के लिए, ताकि मैं फिट रहूं, लोगों को हंसाऊं। उसी जिम में अटैक आ गया, जबकि लोग कहते हैं कि मेहनत करने वाले को अटैक नहीं आता, लेकिन वह जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया और फिर ढेर हो गया। उसी तरह अभी आज से 10 दिन पहले 40 साल एक्टर जो जिम में जाता था ताकि खून आगे ऊंचा ना हो जाए और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाए और हार्ट की बीमारी न हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल
रहे, शुगर नॉर्मल रहे। 46 साल का वो एक्टर जिम ही में उठाते लोहा उठाते हुए एक्सरसाइज करते हुए दिल का दौरा पड़ा, वही ढेर हो गया, हॉस्पिटल भी नहीं जा सका। तो लोग अपने अपने ख्याल में मस्त है, जिम में जाऊंगा मजा मिल जाएगा, फिल्म में नाचूंगा 10 करोड़ कमाऊंगा मजा मिल जाएगा। मगर जिसको मैंने देखा वही 50 करोड़ कमाने के बाद जहर खा के मर गया। एक इंजीनियर अमेरिका का 5 लाख महीना कमाने वाला ऊपर से नीचे जान कूद के वो मर गया। और हिंदुस्तान में आए दिन सुसाइड के वारदात बढ़ते चले जा रहे हैं। जब पैसा बढ़ रहा है तो आदमी को मस्त रहना चाहिए, चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए, और डेली जब गाना सुनता है तो मजा मिलना चाहिए। तो ये जंग क्यों है, ये प्रेशर हाई क्यों है, ये प्रेशर को नॉर्मल की दवाई क्यों है? जो जितना ज्यादा मालदार है वो उतना ही ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई का शिकार है, नींद को बुलाने की गोलियां इस्तेमाल कर रहा है। शादी ब्याह में 80 वर्ष की लड़कियों को 80 साल की बुढ़ी भी नाच रही है, और 16 साल की लड़की भी डांस कर रही है। वह शादी का तमाशा है 2-4-5 घंटे का, उसी में लाखों रुपए डीजे पे खर्च हो रहे हैं, बिंजू पे खर्च हो रहे हैं, नाच पे खर्च हो रहे हैं। तो जिंदगी का मजा मिल जाए, ठीक है, शादी में नाचा गया, गाया गया, डीजे बजाया गया, कम से कम अब तो मजा मिलना चाहिए। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन घर में मातम छा जाता है, तीसरे ही दिन घर में उदासी छा जाती है। मैंने गलत जगह रिश्ता कर लिया, लड़की अच्छी नहीं है, लड़की का बाप अच्छा नहीं है, उनका खानदान अच्छा नहीं है। आज तो नाचा और गाया गया, 1 महीने के बाद तलाक हो गई, 1 महीने के बाद लड़का हिजड़ा साबित हो गया, लड़का नामर्द है, लड़का अरबपति घराने में शादी हुई, अरबपति घराने का लड़का हिजड़ा और नामर्द हुआ। चूंकि दौलतों की फरावानी में उसमें हैंड प्रैक्टिस करते करते अपनी जवानी खो दी, अपने हाथ से मनी निकाल निकाल कर वह नामर्द हो गया। और जब शादी हुई अपनी बीवी के काबिल नहीं है, 1 करोड़ रुपए शादी में खर्च हुए, 1 महीने के बाद रिश्ता टूट गया। तो नाच और गाने में, डांस में लोगों ने सुकून तलाश किया, तो सुकून तो मिलना चाहिए। मगर अब पता चल गया कि सुकून न नाचने में है, न गाने में है, न डीजे बजाने में है, न शराब पीने में है, न मकानात की तामीर में है, न रात दिन बैठकर मोबाइल चलाने में है। सुकून है कहाँ? Where is peace? कोई जवाब नहीं देगा। अल्लाह कहता है सुकून देने वाला तो मैं हूँ, और सुकून मैं वहां देता हूँ जहां मेरा जिक्र हो, जहां मेरी याद हो, जहां कुरान की तिलावत हो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र में मिलता है। जिस झोपड़ी में तिलावत है, इबादत है, दुरूद है, जिक्र इलाही है, वहां बादशाहों जैसा सुकून है। जहां इबादत हो वहीं अल्लाह सकीना नाज़िल फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह। बंदा कमजोरी का पुतला है, बंदा हजार जतन कर ले, बंदे की सोच कमजोर है, बंदे की फिक्र कमजोर है। हम जो चीज तलाश कर रहे हैं जहां, वहां अल्लाह ने नहीं रखा है। खाने काबा है इस तरफ, लोग इधर चल के काबा तलाश करें, नहीं मिलेगा। खाने काबा इधर है, इधर नहीं है। सुकून तलाश करने वाला चाहता है कि मैं अल्लाह रसूल को नाराज करके सुकून में हासिल करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। पूरी दुनिया में आज आग लगी हुई है, आज शहर हो या देहात, कहीं भी चैन नहीं है। चैन वहां है जहां ज़िक्र इलाही है, जहां दुरूद है, जहां सलाम है, जहां इबादत है, तिलावत है। नहीं देखा आपने, आज दिल्ली जाते हैं, कभी ख्याल आता है कि मैं हुमायूं की कब्र पे जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं बाबर की कब्र को देखने जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं अकबर की कब्र पे जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं हिंदुस्तान के इतने सारे बादशाह हैं, इन बादशाहों की कब्र पे जाऊं। नहीं, आपको ख्याल आता है कि मैं फकीर महबूब इलाही की कब्र पे जाऊं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र पे जाऊं, उन दुर्वेशों की कब्र पे जाऊं। उन दुर्वेशों के घर में 5 दिन का फाका था, उन दुर्वेशों के घर में 10 केजी चावल नहीं रहता। जो आज आया सब लंग